Assalamu alaikum, my dear students. Now we are recording the lecture for the course Software Architecture and Design. The topic of today is Design Patterns Introduction. Let's look at the outline of today's lecture. The outline of today's lecture is what are design patterns, why design patterns are used, elements of a design patterns classifications, pros and cons of design patterns, popular design patterns, what are the popular design patterns, and at the end of the lecture we will have a later summary of the lecture. We always start with a motivational quotation, and today's quotations are design is intelligence made visible. जब आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, तो वो आपकी इंटेलिजेंस का शो होता है. वो शो करती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं. इंटेलिजेंट पीपल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स. If you think good design is expensive, you should look of the cost of bad design. आप अगर ये समझते हैं कि एक अच्छा डिज़ाइन करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट और कॉस्ट लगती है, तो आप ये जान लें कि एक बुरे डिज़ाइन की भी बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है. इसलिए लेट्स गो फॉर गुड डिज़ाइन एंड व्हाट अप्रोचेस एंड प्रिंसिपल्स वी शुड फॉलो for good software design. Let's have a look on this lecture. What are the design patterns? Design patterns are the candidates for good design, and how we in the coming lectures we will discuss how we can use design patterns to achieve good design. What are design patterns? The Wikipedia's definition is a design pattern is a general repeatable solution to a commonly occurring problem in software design. Software design patterns are problem solution pairs, and they provide the solutions of problems recurring in software design. Another quotation from Christopher Alexander. Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then describe the core of the solution to that problem in such a way that you can use this solution a million times over without ever doing it the same way twice. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बार बार काम आना चाहिए. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ नॉट फॉर द वन टाइम, सो इट मस्ट बी रीयूजेबल. आप इस स्लाइड में एक पैरामिड देख रहे हैं और आपको इस एरो में नज़र आ रहा है कि द रोड टू द गुड डिज़ाइन. आप एक गुड डिज़ाइन को किस तरह से अचीव कर सकते हैं. सबसे पहले जो इस पैरामिड की बेड रॉक है, उसमें आप ये देख रहे हैं कि अगर हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, हाई कोहेजन, लो कपलिंग, ओपन क्लोज प्रिंसिपल्स, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, डिज़ाइन फॉर कॉन्ट्रैक्ट, segregation interface principles, dependency inversion principles, डिज़ाइन उनको अगर हम अप्लाई करते हैं और उनके बाद हम डिज़ाइन पैटर्न्स को अप्लाई करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स को जो हमारे लोअर लेवल ऑफ डिज़ाइन पे अप्लाई होते हैं, लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डिज़ाइन पे अप्लाई होते हैं, उनको अप्लाई करते हैं तो हम गुड डिज़ाइन को अचीव कर सकते हैं और जो सारी एबिलिटीज़ एक गुड डिज़ाइन में पाई जानी चाहिए उनको अचीव किया जा सकता है. वाई यूज़ डिज़ाइन पैटर्न्स? हम डिज़ाइन पैटर्न्स को इसलिए यूज़ करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि हम वो सारी एबिलिटीज़ अचीव करें जो गुड डिज़ाइन में हो. गुड डिज़ाइन इज़ हाईली रीडेबल एंड मेंटेनेबल, highly extensible, highly scalable, highly testable and highly reusable. Ultimately हम कोई स्पैगेटी डिज़ाइन नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि एक डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड डिज़ाइन हो जो इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सके. What are the elements of a design pattern? A design pattern has 4 essential elements. Gang of 4 design patterns के 4 essential elements हैं: name, problem, solution and consequences.
Name, describe the pattern, add to common terminologies for facilitating communication. The problem, describe when to apply the pattern and in which context. Answer, प्रॉब्लम ये आंसर करता है व्हाट इज़ द पैटर्न ट्राइंग टू सॉल्व, कि हम किस प्रॉब्लम को किस कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. Solution, describe the element and their relationships, responsibilities and collaborations which make up the design. जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड होंगे, हर एक जो कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हम अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं तो किसी एक क्लास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसके मेथड्स में इम्प्लीमेंट होती हैं. एंड कोलैबोरेटर्स, वो किस तरह से एक दूसरी क्लासेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे और मैसेजेस करेंगे. एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइंग द पैटर्न एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स. सब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन कंक्रीट सिनेरियोस. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर. क्रिएशनल कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, these patterns deals with the problems of object creation, instances creation. जब हम इंस्टेंशिएट करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं वो क्रिएशनल पैटर्न्स डील करते हैं. स्ट्रक्चरल पैटर्न्स डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन. जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर्स के साथ डील करते हैं. बिहेवियरल कंपोनेंट्स डील विद द कम्युनिकेशन. जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे को मैसेजिंग करते हैं तो मैसेजिंग के जो प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स डील करते हैं, पैटर्न्स डील करते हैं. तो जो भी चीज़ हम कोई भी यूज़ करते हैं, कोई भी एक टेक्निक यूज़ करते हैं, मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. ऐड कंसिस्टेंसी टू डिज़ाइन बाय सॉल्विंग सिमिलर प्रॉब्लम्स द सेम वे इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज. कंसिस्टेंसी को ऐड करते हैं. ऐड क्लैरिटी टू डिज़ाइन एंड डिज़ाइन कम्युनिकेशन बाय एनेबलिंग ए कॉमन वोकैबुलरी. क्लैरिटी, डिज़ाइन में क्लैरिटी को ऐड करते हैं और यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं. और कॉमन वोकैबुलरी, आप जहाँ कहीं भी कोई कम्युनिटी है जो सॉफ्टवेयर में डील करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही है तो वो डिज़ाइन पैटर्न की वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करते हैं. इम्प्रूव टाइम टू सॉल्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग टेम्पलेट. जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो सर्व करते हैं एज टेम्पलेट सर्व करते हैं to solve problems and which serve as foundation for good design. Improve reusable architectural reuse प्रोवाइड करते हैं कि कोई एक चीज़ अगर उसके फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी हैं. सम पैटर्न्स कम विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. बहुत ज़्यादा कोड ओवरलोड हो सकता है. कॉन्सिक्वेंसेस आर सब्जेक्टिव डिपेंडेंट ऑन कंक्रीट सिनेरियोज. डिफरेंट सिनेरियोज के मुताबिक डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. Patterns are subject to difficult interpretations, misinterpretations may or may not. philosophies को misinterpret किया जा सकता है, इसलिए हम एंटी पैटर्न्स को यूज़ करते हैं. पैटर्न्स कैन बी ओवरयूज्ड और अब्यूज्ड. तो हम अगर किसी भी एक पैटर्न को यूज़ करने के कॉन्सिक्वेंसेस अगर नेगेटिव हैं तो हम उनके एंटी पैटर्न्स को अप्लाई करके तो कॉन्सिक्वेंसेस को रिवर्ट कर सकते हैं. पॉपुलर डिज़ाइन पैटर्न्स जो हमारे लिटरेचर में पाए जाते हैं, ये कुछ नाम हैं. इसके अलावा ऑलमोस्ट 23 पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं. हम सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉपुलर पैटर्न्स के नाम लेते हैं और बाकी पैटर्न्स को भी हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे. स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वर, सिंगलटन, डेकोरेटर, प्रॉक्सी, फिकेड एंड अडॉप्टर. And you already know that we ends up with a beautiful verse from Urdu poetry. Today we have selected Mirza Ghalib, who is king of Urdu poetry. ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिब, कोई चारा साज होता कोई गम गुजार होता. Thank you very much. Do it yourself. Try to understand yourself. Try to understand the concepts yourself from literature and from the
material we are providing to you. Thank you very much.